Jai Jinendra, Hare Krishna, Jai Sri Ram friends. Now we are starting with the misappropriation of assets where we topic misappropriation of assets. Now misappropriation of assets are first of all misappropriation of assets. What is misappropriation of assets? Where the assets have been misappropriated by the TCWG or management or any other third party or employee of a firm within the firm, of a firm and within the firm. मीन्स असेट अंदर के लोग हैं वो ही मिस अप्रोप्रिएट करके ले गए. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूजुअली परपिट्रेटेड 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 मतलब डन और carried out it is usually carried out by whom? By by employees but in immaterial amount or very small amount. Immaterial amount or very small amount which cannot be easily identifiable or which has no such bigger impact on the working or operations of the organization. Also it can also be perpetrated by whom? By management or TCWG or higher management cadre, and it is in material amount. And इतनी होशियारी से ये काम करते हैं ना कौन? मैनेजमेंट TCW. और इतने बड़े अमाउंट में करते हैं ना जो डिटेक्ट होना बहुत ही मुश्किल है by the auditor when he is auditing the thing. Now what are the ways of misappropriation of asset? Now for this I have a mnemonic: equity shares of PK movie. उसका मतलब क्या है? इक्विटी, ई मतलब embezzling receipts मतलब अगर कोई भी हमें रिसीट आई है, मतलब if we have received any amount from our debtors or from any source of income, then we are embezzling in. Now embezzling means that we are not showing it in the books of account, or we are not getting it recorded or transacted in our books. मतलब वी आर डायरेक्टली कंसीलिंग इट. कंसीलिंग मतलब छुपाना. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉय है, उसको कहीं से इनकम है, उसने कुछ बेचा फर्म का और उसको कहीं से कुछ इनकम आई. फॉर एग्जाम्पल उसने सेल ऑफ न्यूज़पेपर किया, उसको इनकम आई, तो वो उसने दिखा ही नहीं इनकम. उसने ऐसा बोला कि जो रिसिप्ट थी मेरी न्यूज़पेपर वो मैंने 0 रुपीज में बेच दिया. मतलब कोई रुपए में नहीं बेचे, ऐसे ही मैंने भंगार में दे दिए. while in reality he actually sold the newspaper for 400 rupees for example. तो वो 400 रुपए उसने अपनी जेब में रख लिए. तो ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट हुआ. असेट कैसे? क्योंकि वो जो कैश है, such cash of rupees 400 was a asset for the company, but the same was embezzled by whom? By the person doing such fraud. Second, S मतलब simply stealing physical or intellectual asset. Stealing physical or intellectual, both asset, physical or intellectual assets. मतलब in this management or employees usually they steal physical assets of an organization. For example, they are stealing pen, pencil. They are not assets for although, but they are, for example, stealing the laptops which have been provided to the employees for their office purpose. Then they are stealing, for example, coffee cups or any office stuff which are used for the office purposes only. But that the auditor would not be able to find such fraud because he won't be in a position to see that whether the firm has 400 laptops and now the firm has only left with 350 laptops. So where are the 50 laptops gone? He won't be in a position, and neither he would be
interested in finding such fraud because they are in very immaterial amount, because the fraud done by employees is very immaterial, मतलब in immaterial amount. Now P means payment to fictitious vendor, payments to fictitious vendors, or payment to fictitious vendors, मतलब in this there is a collusion between the and the third party employee and the third party or supplier of the organization, in which the third party or the supplier would agree with the employer or employee, sorry, employee not employer, that I would provide the goods to you for 100 rupees, but you tell your organization that I matlab their supplier has provided the same goods to me for 120 rupees. So due to that, the company will pay 120 rupees to the supplier, out of which 20 rupees to be paid to the employee, or a part of a 20 rupees, for example some commission or what. So it is also known as payment to fictitious vendor, or sometimes payment to fictitious employee. And the fourth one was paid kickback paid by vendors. Kickback paid by vendors. नाउ पेमेंट टू फिक्टिशियस वेंडर मतलब जो वेंडर एक्चुअली में नहीं है तो अभी हमने उसको पे किया, और सॉरी मैंने अभी जो समझा वो था किकबैक पेड बाय वेंडर, जिसमें वो दोनों लोग अग्री करते हैं. नाउ as we all know, misappropriation of assets is of two types: misappropriation of goods and defalcation of cash. पहले तो misappropriation of goods. misappropriation of goods में क्या होता है? पहले तो ये डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट होना, जो तो पूरा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स पूरा डिफिकल्ट है डिटेक्ट होना, क्योंकि वो असेट है, वो जनरली हम निकाल नहीं सकते कि किसमें से कितना निकला है, किसमें कितना पहले था, क्या वैल्यू थी, कितना स्क्रैप हो गया, कितना डेप्रिसिएशन था, एंड ऑल दैट स्टफ. नाउ अगर गुड्स है तो पहले तो गुड्स में मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, सो व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट. पहले तो व्हाट आर द measures to prevent. Remember, these are the measures which are to be undertaken by the management. The management is responsible for the measures to prevent the misappropriation of the goods and not the auditor, because the auditor has only to do audit of the things which has been provided to him or the information which has been provided to him. He is not responsible for the measures to be implemented for such prevention of the misappropriation of the goods. Now there are three methods majorly. First, record keeping. Now as the name suggests, record keeping matlab the firm should be keeping a record of every transaction happening with the asset. Then rules and procedures shall be made. Rules and procedures shall be made कि भाई एक एम्प्लॉय को एक ही लैपटॉप देंगे, ये रूल है यहाँ का. प्रोसीजर में ऐसा हो सकता है कि if you want one laptop, you have to apply to the HR will apply to the CEO. Thus all will be on paper, so nothing would be hidden or concealed from the higher management cadre. And the third one is external security. On daily basis, not daily basis, but on a timely period, the organization should be checking external security that ये डेस्क पे तो पहले 5 लैपटॉप थे, अब तो 4 ही है, मतलब वन हैज बीन थेफ्टेड, मतलब वन हैज बीन किसी ने स्टील कर लिया है, चुरा लिया है, वन हैज बीन स्टोलन. सो एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी होना चाहिए. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द ऑडिटर. नाउ हियर कम्स द ऑडिटर. स्टेप्स taken by auditor to find such fraud, and not to prevent. Once again, there are 3 steps again. First, he must be in a position to thorough and strenuous checking. मतलब अगर उसको ऐसा कुछ काम प्रोवाइड हुआ है कि तुझे ये असेट है और इतने असेट थे हमारे पास, तो अब तू निकाल ले कि तुझे अब कितने चेक करने हैं, या पहले क्या था या पहले नहीं था.
तो इट इज अ मीनिंग ऑफ स्ट्रेनियस चेकिंग, मतलब इन डिटेल, इन डीप, exalted. And second is physical verification physical verification. No need to explain this, I guess. And the last one is the ratio analysis. उसको ratio analyze भी करना पड़ेगा. Now ratio analysis, if you have studied FM, you would be in a better position to understand because of the total asset ratio, sales to asset ratio, then asset टू लायबिलिटी रेशियो, ऐसे सब रेशियो बहुत आते हैं. तो रेशियो एनालिसिस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल पहले कोई हमारे फर्म का रेशियो था कि दो असेट के सामने हमारे पास चार लायबिलिटी है, और अभी हमारे पास दो असेट के सामने सॉरी एक असेट के सामने चार लायबिलिटी है. उसका मतलब लायबिलिटी तो उतनी ही है हमारी, लेकिन हमारा एक किसी ने बेच दिया हो तो रिकॉर्ड दिखाओ, गुम हो गया है तो उसका एविडेंस, मतलब एविडेंस तो नहीं होगा ऑब्वियसली, गुम हुआ है तो. अगर वो एररनेसली गुम हुआ है तो उसका रिकॉर्ड हो सकता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ रिवीलिंग एरर. जब वो ऑडिट करेगा तब उसको मिल जाएगा, लेकिन उसका फ्रॉड हुआ है then it will be very difficult on the part of the auditor to find such fraud. Now, defalcation of the cash. Defalcation of cash. अब इसमें क्या है डिफॉल्केशन ऑफ द कैश? इसमें पहले तो सबसे पहले दो मेथड है डिफॉल्केशन ऑफ कैश की. वो दो मेथड है बाय inflating cash payments, or by suppressing cash receipts. Now I will just walk you down with both of the terms. पहले तो inflating cash payment क्या होता है? For example, if an employee wants to steal some cash, for example 1,000 rupees, then what he will do, he will uh, fictitiously enter any miscellaneous expenses of 1,000 rupees. For example, he will say that I have incurred rupees 1,000 for printing and stationery, and thus I have paid rupees 1,000 for the same. But in reality, there is no such expense, and he would steal the 1,000 rupees in cash. Inflating cash payment. And suppressing cash receipt, the vice versa of the same. For example, if he has received, continuing with the same example of newspaper, if he has received rupees 400 by selling of newspaper, he will say to the sales manager that I have sold it for 0 rupees, I have not realized any value for the same, and thus there is no cash inflow. But in reality, there is a cash inflow of rupees 400, but which he has not transacted or not recorded in the books of account of the firm. Thus, he also stole some cash receipts or suppressed some cash receipt. Now, here are some point of inflating cash payment. There are three ways, I would say, three ways. फर्स्ट, परचेजेस. कहाँ पे ऐसे हो सकता है? परचेजेस में ऐसा हो सकता है, ऑब्वियसली परचेजेस में वो क्या दिखाएगा, इन्फ्लेटेड परचेस दिखा सकता है कि मैंने ना 1,000 रुपए का परचेस किया. फॉर एग्जाम्पल उसने 1,000 रुपए का परचेस किया है, उसने ऐसा दिखाया, लेकिन सच में परचेस था 500 रुपए का ही, तो उसने वो ज्यादा दिखाया. या फिर परचेस ही ना हुआ हो तो अभी उसने दिखाया कि मैंने परचेस किया है. इन्फ्लेटेड मतलब बढ़ाया हुआ, फिक्टिशियस मतलब हुआ ही नहीं है तो अभी उसने दिखाया. दूसरा, वेजेस में ऐसा हो सकता है. वेजेस इंक्लूड्स ऑल द expenses related to the trading account, मतलब for this purpose, for audit purpose, not your accounts purpose. वेजेस में भी ऐसा हो सकता है, डमी या फिर इन्फ्लेटेड हो सकता है कि भाई ऐसे सच में तो हुआ ही नहीं है, तो अभी उसने दिखा दिया कि हाँ भाई इतना खर्चा हो गया है, लेकिन हुआ ही नहीं था भाई तेरा तो खर्चा. और थर्ड वन इज पेटी कैश एडजस्टिंग. हाँ, इसमें क्या होता है, वो क्या करेगा, एडजस्टिंग टोटल, मतलब जो लास्ट टोटल होता है ना हमारा, टोटल ऑफ कॉलम्स. इन पेटी कैश देर आर ह्यूमंगस नंबर ऑफ एंट्रीज. मतलब एक दिन में फॉर एग्जांपल 5,000 एंट्री होती होगी, तो ऑडिटर हर एक एंट्री तो निकालेगा नहीं, वो तो सैम्पलिंग करेगा. सैम्पलिंग में भी हर एक एंट्री तो आएगी नहीं, तो क्या करेगा एम्प्लॉय कि जब उसको पकड़े नहीं जाना ना, तो वो जो नीचे टोटल होंगे ना,
वो बदल देगा। फॉर एग्जाम्पल खर्चा हुआ है या फिर इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है 5,000 रुपये का पूरे दिन में, उसने दिखाया 6,000, 1,000 रुपये वो घर ले गया अपने आप। कैश रिसिप्ट में आई हैव अगेन न्यूमोनिक इफ यू वांट, इट इज TDMBFC। Now, if you are playing any game like BGMI, you must be knowing TDM। तो उसको मैंने कैसे याद रखा था कि TDM में उसका बॉयफ्रेंड बहुत सी कैटेगरी का खेलता था। नाउ फर्स्ट वन इज टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग, इसकी टोपी उसके सर। वेट, लेट मी फिनिश इट देन आई विल एक्सप्लेन यू। डिस्काउंट, वो उसको फिक्टिशियस दिखा देगा, फिक्टिशियस। देन एम, आई एम explaining you one by one once I complete my writing. M is miscellaneous, miscellaneous. Then B मतलब bad dates, bad dates means writing off cash already received, received. F मतलब तो fixed asset, fixed assets, उसको रिटर्न डाउन वैल्यू कर देगा, वो राइट डाउन कर देगा उसकी वैल्यू। सी मतलब कैश सेल नॉट अकाउंटेड फॉर, नॉट अकाउंटेड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग उसमें क्या होता है, इसकी टोपी उसके सर, ऐसा याद रखो। इन दिस फॉर एग्जांपल कस्टमर ए has given us money of rupees 1,000 which is misappropriated by the employee or the collecting manager, whoever the collecting manager of the debtors department is. For example, K is the collecting manager of the debtors department. So customer A has given a money or has given his money of rupees 1,000 for override for राइटिंग ऑफ हिज डेट, मतलब जो वो ओ करता था कंपनी को, उसके लिए उसने 1,000 रुपीज वापस दे दिए कलेक्टिंग मैनेजर के को। तो अब के वो उसको मिस अप्रोप्रिएट करके ले गया, चुरा के ले गया, स्टील करके ले गया। देन अगेन फॉर एग्जाम्पल कस्टमर नंबर बी आया एंड कस्टमर नंबर बी गेव रुपीज 5,000 विच ही ओड टू द कंपनी टू द कस्टमर के। फ्रॉम दैट sorry not customer K to K, from that K will enter as 1,000 rupees received from A and 4,000 rupees received from B. Thus he teamed and laid 1,000 rupees which has already been received from the customer but still he has not accounted for. Now B ने तो अपने 5,000 दे लिए, लेकिन उसने ऐसा लिखा कि 4,000 ही मिले उसके, तो 1,000 बाकी है। अब 1,000 को वो क्या करेगा वो देखते हैं। पहले तो सी आया, बाद में सी ने दिए 3,000 रुपए, तो 3,000 में से उसने 1,000 वापिस दे दिए। नाउ इन दैट ऑल्सो ही रिकॉर्डेड द वैल्यू दैट 1,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम बी एंड 2,000 रुपीज फ्रॉम सी। तो अब सी के पास 2,000 ही मिले, ऐसा उसने दिखाया। मिले तो पूरे थे 3,000 जो उसको लेने थे कंपनी मतलब सी से, कंपनी को सी से लेने थे, तो अभी तो 2,000 दिखाए। अब तो वो 1,000 जो सी के बचे ना, वो क्या दिखाएगा वो कि कहाँ तो उसने डिस्काउंट दे दिया है, के ने सी को डिस्काउंट दे दिया है क्योंकि वो अच्छा कस्टमर था हमारा और रेगुलरली पेमेंट करता था, और ही वुड से एज अ बैड डेट। मतलब वो ऐसा भी दिखा सकता है, एक साथ में तीनों समझा रहा हूँ कि डिस्काउंट में वो 56 डिस्काउंट दिखा सकता है कि अगर 1,000 उससे मिल गए हमें जो बाकी थे, तो अभी वो दिखाएगा कि हमने उसको डिस्काउंट दिया है और हमने उससे मांगे नहीं 1,000 रुपीज, बट इन रियलिटी द के misappropriated the amount which he already received, or either he would say as a discount or he would record the transaction as a bad debt। मतलब वो 1,000 रुपए को ऐसा दिखाएगा कि मुझे बैड डेट हो गए, कंपनी को बैड डेट हो गए 1,000 रुपए के, while in reality the company has not incurred any bad debt but the K has misappropriated in a wrong way। Now मिसलिनियस में तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसे रिसिट मिली, छोटी मोटी रिसिट मिलती है, मतलब न्यूज़पेपर सेल हो गया या फिर कोई स्क्रैप था, वो उसको सप्रेस करके ले गया। फिक्स असेट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एनी फिक्स असेट है
सेम एग्जांपल गोज विद द सेम एग्जांपल ऑफ द सेल ऑफ स्क्रैप और न्यूज़पेपर, लेकिन फिक्स एसेट में उसका मतलब अगर कोई एसेट की अभी रिटर्न डाउन वैल्यू है 1000 रुपए, तो वो उसको बेचने गया तो उसको मिले 500 रुपए, लेकिन उसने दिखाया कि मुझे मिले 200 ही रुपए, तो 300 रुपए उसने अपनी जेब में डाल दिए। और कैश सेल, नाउ दिस इज यूजुअली डन इन रियल प्रैक्टिकल लाइफ। जो कैश सेल होती है ना, वो उसको दिखाता ही नहीं है, लेकिन ये पकड़े कहाँ पे जाते हैं, जब इन्वेंट्री काउंट होती है तब। फॉर एग्जाम्पल कोई कैश सेल हुई, जे है, द पर्सन नेम जे इज इन द सेल्स डिपार्टमेंट। नाउ ही हैज सोल्ड रुपीज 5000, मतलब गुड्स ऑफ रुपीज 5000 टू द कस्टमर ओ। तो जो ओ था ना, ओ गिव द पेमेंट मतलब ऑफ रुपीज 5000 टू जे for the goods he purchased from J. But J did not record any transaction of the sales or did not show any sales which he actually did to customer O, और वो 5000 घर लेके चला गया। लेकिन जब इन्वेंट्री काउंटिंग होगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगा फिजिकली, तब वो पकड़ा जाएगा कि यहाँ से 5000 की इन्वेंट्री तो गई है, लेकिन वो तूने दिखाई क्यों नहीं, तो वहां से वो पकड़ा जा सकता है। नाउ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स हो गया। अब what is the relationship between management, what are the reasons where relationship between management and auditor is strained? For example, relationship between management and auditor is strained मतलब बिगड़ जाना, strained by the following reasons, first is frequent disputes or domineering management, I would say domineering मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैनेजमेंट बोलता है वो हमें करना पड़ता है ऑडिटर को। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल में हम ऑडिटर है, सो द मैनेजमेंट इज प्रेशराइजिंग अस, द मैनेजर इज फोर्सिंग अस और प्रेशरिंग अस कि तुमको इतना ही सेल दिखाना है, कि या तो फिर तुमको ये चेक नहीं करना है। सो वी आर बाउंड बाय सम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट। सो हम भी उतना ही करते हैं, लेकिन हम बाद में अपने रिपोर्ट में वो लिख लेते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन देके। तो फिर डोमिनेटिंग मैनेजमेंट हो सकता है। दूसरा हो सकता है अनरीजनेबल डिमांड, अनरीजनेबल डिमांड ऑन द ऑडिटर, अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन ऑडिटर। ऐसा बोलेगा उसको कि भाई चल तुझे है ना 2 दिन में ऑडिट खत्म करना है, बाद में हमें वापस काम चालू करना है, ऐसा मैनेजमेंट ऑडिटर को बोलेगा। वो अनरीजनेबल है बिकॉज द ऑडिट टेक्स अ सिक्वेंशियल प्रोसेस, ऑडिट इज अ सिक्वेंशियल प्रोसेस एंड इट इज अ टाइम एंड इटरेटिव प्रोसेस, सो इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द ऑडिटर टू चेक द सेम। तो अब ऐसा नहीं बोल सकता कि तू जल्दी खत्म कर दे, हमें ये करना है, अनरीजनेबल डिमांड होगी तो उसके पे। तो थर्ड इज रिस्ट्रिक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये प्रैक्टिकल में भी बहुत होता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेस टू पीपल, एक्सेस टू पीपल मतलब ऑडिटर को है ना, पीपल मतलब इनसाइड, इनसाइड वाले, इनसाइड सोर्सेज, नॉट एक्सटर्नल सोर्सेज और थर्ड पार्टी या फिर दूसरे कोई। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू पीपल, इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट is restricting the access of the auditor to communicate with the people or to communicate with the TCWG, so that the auditor would not be in a position to identify any deviations and tell the same or communicate the same to the TCWG. And the fourth one is frequent dispute, ये सबकी वजह से, because of frequent disputes, एक मिनट, frequent disputes because of the following above three reasons, because of the above three reasons there are frequent disputes between the management and the auditor, and that's where the relationship between management and auditor is strained. Now fourth point is, what are the circumstances relating to fraud possibility, relating to fraud possibility.
व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू द फ्रॉड पॉसिबिलिटी, कौन सी सर्कमस्टेंसेस हो सकती है। सबसे पहले फर्स्ट, डिस्क्रिपेंसीज मतलब डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इन अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। उसमें क्या होता है, उसमें क्या क्या हो सकता है। पहला तो ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस नॉट recorded not recorded on timely basis or recorded incompletely or recorded incompletely. Second, this is self-explanatory, you must be knowing the meaning of the same. Now second is last minute adjustments, last minute adjustment। इसमें क्या होता है, नियर द बैलेंस शीट डेट द मैनेजमेंट इज एडजस्टिंग सम अमाउंट or some debtor or some creditor just to increase or decrease the profit as per the that their so called terms, to for to misguide the investor। मतलब उसको प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगे इन्वेस्टर को या कम दिखाएंगे या कुछ भी करके उसको उल्लू बना देंगे। थर्ड वन इज अनऑथोराइज्ड बैलेंसेस, मतलब अगर एक पर्सन इंचार्ज है फॉर एग्जांपल कैश बैलेंस का, लेकिन वो उसको ध्यान ही नहीं दे रहा, मतलब वो कुछ भी होता है ना ऐसे हाँ साइन कर देता है कि हाँ इतना खर्चा है, साइन साइन कर दिया। अनऑथोराइज बैलेंसेस, या फिर कोई और पर्सन उसकी साइन को फॉर्ज करता है, फॉर्ज मतलब फेक साइन कर लेता है उसकी। अनऑथोराइज बैलेंसेस मतलब जो ऑथोराइज नहीं है, और अगर ऑथोराइज है तो उस पर उसने ध्यान नहीं किया। ही हैज नॉट फोकस्ड मेन अपॉन, ही हैज नॉट मेनली फोकस अपॉन द थिंग विच ही वाज accounted for. Now fourth one is complaints about alleged fraud to auditor। मतलब कोई है ना, wait I'll write a word so you'll better understand। विसल ब्लोअर, यहाँ पे क्या होता है, ये लोग अच्छे होते हैं, विसल ब्लोअर बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उनको अपने मैनेजमेंट की डर की वजह से वो डायरेक्ट बोल नहीं सकते। लेकिन वो क्या करेंगे, वो ऑडिटर जो होगा ना उसको, जो भी फ्रॉड फर्म में हुआ है ना, जो इसको पता है विसल ब्लोअर को, वो ऑडिटर को जाके बता देंगे कि इतना इतना फ्रॉड हुआ है, तो तुम इस पे ज्यादा ध्यान देना और मेरा नाम मत आने देना कहीं पे ऐसा, वरना मुझे निकाल देंगे। और लास्ट, इनकंसिस्टेंट एविडेंसेस, मतलब कहीं एविडेंस ही नहीं मिल रहा है और मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमने 5,000 रुपए का जो हमने J2O कैश सेल हमने किया था अभी, वो हमें मिल गया। फॉर एग्जाम्पल वो हमें मिल गया, लेकिन उसके बाद ऐसी 2-3 एंट्री हुई वो नहीं मिली, तो ये तो इनकंसिस्टेंट एविडेंस है। एक मिला चलो अच्छा, एक फ्रॉड पकड़ा गया, लेकिन दूसरे दो का क्या। ऐसे ही सेकंड बी is missing evidences, again it is also some self explanatory part। मिसिंग एविडेंस में तो क्या होता है, सिंपल है ना, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, अल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, देन मिसिंग डॉक्यूमेंट्स और मिसिंग सम कैंसल्ड checks, inventories, physical assets, physical assets, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस या फिर इन्वेंटरी, ये मिसिंग हो गए, मतलब खो गए उसके एविडेंस। वो खोए नहीं है, वो मिसअप्रोप्रिएट हो गए, लेकिन वो हमें ऐसा दिखेंगे कि खो गए, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, हमारे देखभाल में नहीं हुआ है, मतलब देखभाल में नहीं हुआ है। ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, बदल दिए डॉक्यूमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशन बदल दिए। कल हमने देखा था सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशन को वो लोग बदल देते हैं, किसमें बदल देते हैं कि टेक्निक्स बाय विच मैनेजमेंट ओवरहेड कंट्रोल, उसमें क्या करते हैं वो लोग, ऑल्टरिंग द रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस। And the last one is significant unexplained items, significant unexplained
अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स है जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए मैनेजमेंट। जब ऑडिटर ने पूछा चलिए समझा, चलिए समझा, चलिए समझा, तो वो समझा ही नहीं पाया क्योंकि उसके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, या कुछ भी बोल लो, उसको वो डर गया या फिर वो नहीं बोल पाया क्योंकि वो फ्रॉड था। अब फ्रॉड में एकजुट पे एकजुट कितना बोल सकता है वो। एंड द लास्ट वन इज सी, प्रॉब्लमेटिक relations between. I have written this beside this point because this is what directly or indirectly somewhat connected to C point. So please watch carefully. Between management and auditor. So if this question is asked in exam, you can write these 4 points and also following points. फर्स्ट, डिनायल ऑफ एक्सेस जो इसमें है, रिस्ट्रिक्शन और एक्सेस वो ही डिनायल ऑफ एक्सेस है, लेकिन उसमें सिर्फ पीपल था ना, यहाँ पे तो पीपल भी है, फिर दो चीज और भी है। पहले तो रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, या फिर की आईटी ऑपरेशंस। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो ऑपरेशंस होते हैं वो। दूसरा डिनायल ऑफ एक्सेस तो आ गया इसमें। फिर अनड्यू टाइम प्रेशर, अनड्यू टाइम प्रेशर, अनड्यू टाइम प्रेशर में क्या हुआ, इट इज अ सब पार्ट ऑफ सब कैटेगरी ऑफ अनरीजनेबल डिमांड ऑफ द ऑडिटर। वो उस पर अनड्यू टाइम प्रेशर डाल रहा है मैनेजमेंट के, भाई तू इतने में खत्म कर, इतने में खत्म कर, वो इम्पॉसिबल है, तो अभी वो उस पर डाल रहा है उतना। फिर अनयूजुअल डिले, अनयूजुअल डिले कर रहा है वो कौन, मैनेजमेंट। वो द ऑडिटर हैज आस्क्ड द मैनेजमेंट टू ब्रॉड द फाइल्स और रिकॉर्ड्स बाय 1 week, but he is unusually delaying the file to bringing the files for 2 week। मतलब 1 week उसने ज्यादा ले लिया जिससे वो ऑडिटर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उसका फोकस हिल जाए और वो कहीं पे फ्रॉड कर पाए, कौन, मैनेजमेंट। और थर्ड, अनविलिंगनेस, इट इज ऑल्सो अगेन अ पार्ट ऑफ द, एक मिनट, अनविलिंगनेस टू एड्रेस आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज, आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज। नाउ अब इसमें क्या है, अनविलिंगनेस टू एड्रेस आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज में, कि मैनेजमेंट को कोई डेफिशिएंसी पता चल गई है उसके फर्म की, तो अभी वो अनविलिंगली, जानबूझ के उसको बता नहीं रहा ऑडिटर को कि हमारे में ये डेफिशिएंसी, हमारे में जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है ना उसमें ये बंदा फ्रॉड कर रहा था, या फिर सेल्स डिपार्टमेंट में जे नाम का बंदा है ना उसने फ्रॉड किया, वो जानबूझ के नहीं दिखाएगा बिकॉज ही वांट द firm's reputation to be intact, because the firm's reputation in the stock market, in all the portfolio management, in the equity research is highly valuable। तो अगर उसको ये पता चल गया कि ऑडिटर को ये पता चला, और किससे पता चला, तो भाई कोई बंदे ने ऐसा बोला मैनेजमेंट के कि ये डेफिशिएंसी थी, उसने बोल दिया, तो मैनेजमेंट की तो जॉब गई वहां से, इसलिए। सो नाउ हियर एंड्स द होल essay 240